ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਬਰ, ਇਸਤਿਕਾਮਤ, ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਤਰਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਤ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਗੂਰ ਹੋਣ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਛਾਬੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਇਸ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਰ ਛਾਬੜੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਬੜੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, 40-50 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਬੜੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਅੰਗੂਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ 40-50 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਨੇ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਛਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਛਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੈਨ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਇਨਹਿਮਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੂਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਕਬਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਲਸੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਦ ਮਾਹ ਕਬਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ
कि एक पुत्र ने जमीन के एक टुकड़े की खातर, जायदाद की खातर अपने सके बाप नूं जमीन ते लटा के जुत्तियां दे नाल कुटिया, जुत्तियां दे नाल कुटिया। ओदी मां भी ना रल गई, ओदा बाबे दा जवाई भी ना रल गया। यानी कि मतलब है कि सारे रल गए बाबे नूं कुट्टण डै ने। बाबा जिहड़ी वो बाबे दे नाम जमीन सी वो भी लेना चाहते सन। हालांकि बाबे का बयान आया सी कि मैं अपने इन्हां हिस्से वंड दिते, दे दिते सारा कुछ। ਇਹਦਾ मतलब तो ये होया ना कि वह जमीन का टुकड़ा जिहड़ा बाबे के हिस्से सी वह भी लेना चाहते सन। यार कदी कल्ले बह के सोचा करो कि यार जिहड़ा भरा भरा नूं कतल क्या कर रहा है, असी रिश्तेदारां दे जनाब ए सारे मामलात नूं पमाल कर रहे हैं कि जमीन के टुकड़े की खातर जिवें ये मर गया उस रासी मर जाना, ये जमीन इत्थे रह जानी है, इत्थे किसे रहना? सारे बोलो रहना, किसे भी नहीं रहना। आइए जरा सिला रहमी के हवाले नाल, रिश्तेदारी के हवाले नाल मैं इंशाअल्लाह गुजारिशात करांगा, क्योंकि इन मज़ामीन की इस मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कि असी रिश्ते खून दे सन हुण खून होन लग पे है, रिश्तेदारां नूं कतल कर लग पे हैं। दुआ है कि जो कुछ अल्लाह ताला मेरे को बयान करवाए, अल्लाह मेरे समेत तुहानूं सारियां नूं अल्लाह पाक इहदे ते अमल दी तौफीक भी अता फरमाए। आइए ज़रा सूरत निसा दी इब्तदाई आयात अल्लाह दी ज़ात ने इसे बात का जिक्र फरमाया है। सूरत निसा शुरू हो रही है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। अल्लाह पाक ने फरमाया है, ऐ दुनिया दे लोगो अपने रब को डर जाओ। फरमाया अल्लज़ी खलक़कुम, फरमाया केड़ा रब है जिन्हें तुहानू पैदा किया है। सानू पैदा करने वाला कौन है? सारे जरा बोलो, पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह पैदा करने वाला है। फरमाया कि अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, फरमाया उस रब को डर जाओ जिन्हें तुहानू एक जान तो पैदा फरमाया है। एक जान तो मुराद हज़रत बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम दी ज़ात है। फरमाया तुहानू एक जान तो पैदा फरमाया है। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, फिर आदम अलैहिस्सलाम दे विचों खबले खब्बी पसली दे विचों अल्लाह पाक ने सैयदा अम्मा जी हव्वा अलैहिस्सलाम नो पैदा फरमाया है। फरमाया व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, फरमाया फिर अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा मर्द ते बहुत ज़्यादा औरतां बना दित्तियां ने। जिदों आदम अलैहिस्सलाम ते उन्हां दी बीवी अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया ते आए ने, अल्लाह ने नस्ल इंसानियत दा आगाज़ फरमा दिता है। फरमाया फिर बहुत ज़्यादा मर्द ते औरतां यानी नस्ल इंसानियत दा आगाज़ हो गया है। अल्लाह फरमाया व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, फरमाया सी बहुत ज़्यादा मर्द ते बहुत ज़्यादा औरतां फैला दित्तियां ने। अगे अल्लाह पाक ने फरमाया वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, अल्लाह ने पहले भी अपना डरन का हुक्म दिता है, तो आखिर फिर अल्लाह पाक ने यह फरमाया है। फरमाया वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, फरमाया उस रब को डर जाओ। फरमाया तसाअलून जिहदे कोलों तुसी सवाल करदे हो, यानी बंदा बीमार हो गया है, तंदुरुस्ती की दुआ कर रहा है, सवाल कर रहा है। बंदा गुरबत दा मारिया है, दौलत का सवाल कर रहा है। एक बंदा मकरूज है, कर्जे तो रहाई दे वास्ते अल्लाह को सवाल कर रहा है। फरमाया तसाअलून
तसअलून बिही वल अरहाम। फरमाया उस अल्लाह को डर जाओ जिहदे कोलों सवाल करदे हो। फरमाया फिर करीबी रिश्तेदारां नूं फरमाया रिश्तेदारियां तोड़न तो मना हो जाओ, बच जाओ। रिश्तेदारियां तोड़िया ना करो बल्कि रिश्तेदारियां जोड़िया करो। लो मैं दुआ करदा जे आमीन तुसां कह देनी अल्लाह जी सानू रिश्तेदारियां जोड़न वाला बनावी, अल्लाह रिश्तेदारियां तोड़न वाला ना बनावी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वल अरहाम यानी राम दे रिश्ते करीबी रिश्तेदार फरमाया उन्होंने तोड़न तो बच जाओ, रिश्तेदारियां जोड़िया करो। यार निक्की निक्की गल ते खुदा दी कसमे असी मरन जीन मुका देने, निक्की निक्की गल ते भरा भरा नूं कोई नहीं बुला रहा, यानी छोटी छोटी बात ते असी अपनियां भैणां नूं बुलाना छड़ देने, सगे भरावां नूं बुलाना छड़ देने। हालांकि नबी अलैहि सलाम दी अगे जाके मैं तुहानूं हदीस सुनावांगा, बड़ी सख्त वाईद है जो नबी अलैहि सलाम ने आज तो 1450 साल पहले बयान फरमाई है। अल्लाह जानदा मैं वेख्या बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े तहज्जुद गुजार, दिल काले स्याह बिल्कुल काले दिल लैके खुदा दी कसम नमाजा भी पढ़ी जाने, रोजे भी रखी जाने, हज ते हज भी करी जाने, उमरे ते उमरा भी करी जाने, दिल भी साडे काले, ढिड भी साडे काले। हजरात गिरामी कदर अज दी गुफ्तगू सख्त भी बड़ी है मगर लम्हे फिक्रिया भी है। अल्लाह दे हुजूर दुआ करो कि अल्लाह सानू रिश्तेदारियां जोड़न वाला बनाए। उच्ची को आमीन। ये बड़ी अगे सख्त वईद मैं नबी अलैहि सलाम दी सुनानी है। इस वास्ते इस मुआशरे दे अंदर सिला रहमी दा उन्वान जेड़ा है मिंबरो मेहराब दे खुदा दी कसम इस तरह दी सदावां बुलंद होणियां चाहिदियां ने। हालांकि मेरे अंदर भी कमी है, तुहाडे अंदर भी कमी होएगी। असीं निक्की निक्की गल तो बुलाना छड्डदे ने, यार केड़ा इत्थे मर जाना, सारे मर जाना, रहना तो रब दा नाम है ना। इस वास्ते अपने दिल साफ कर लो, जे नाराज हो राजी कर लो। आइए तवज्जो कीजिए, इमाम कुल कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फरमाया वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। अल्लाह कहते ने मैं तुहाडे ते नगरान। नगरान साडा कौन है? डिले डिले बोल दो, नगरान साडा कौन है? हुण वेखो ना, अल्लाह साडा नगरान है ते रब साडे दिलां दे भेत जानदा कि नहीं जानदा? जानते ना अल्लाह साडे दिलों के भेत। आइए जरा तवज्जो फरमाइए, मैं कुरान पाक दी आयत मुबारक पढ़ी है, ये अंदर अल्लाह पाक ने सिला रहमी करन दा हुक्म इरशाद फरमाया है। आइए एक दफ़ा इमाम कुल कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी दे आलम अंदर घर अंदर आए ने। हजरत माँ जी खतीजा रजी अल्लाह तआला ना वेख के पाप गईयां, कहन लगियां सोहणियो की गल है? आपने फरमाया खतीजा मैनू अपनी जान का डर पै गया है, इन्होंने लोगों का बड़ा परेशान मैनू इन्ना कर दिता है, मैनू अपनी जान का खतरा लैक हो गया है। तो माँ जी खतीजा की फरमा रही ने, उठाइए बुखारी पाक अंदर रवायत अम्मा खतीजा रजी अल्लाह फरमांदियां ने, खुदा दी कसम ऐसे जुमले बोले ने, ऐसे जुमले के आबे जर दे पानी ना लिखिए फिर भी हक अदा नहीं हुंदा। ते हजरत अम्मा खतीजा नबी अलैहि सलाम नूं दिलासे दे रही हैं, तो नाले पता की कहन दियां ने, फरमाया सोहणियो तुसी ते गरीबां दे कम आण वाले हो, सोहणियो तुसी ते गरीबां दे काम आण वाले हो, कमांदे तुसी हो खांदे लोग ने, तुसी ते इन्हां बेकस बेचारियां दे काम आंदे हो, इन्हां लोगां दा बोझ उठांदे हो। फरमाया नबी अलैहि सलाम दी सिफात बयान करदियां करदियां हजरत माँ जी खतीजा रजी अल्लाह की फरमा रही ने, फरमाया इन्नका लतासिलुर रहिमा। लोगों मैं सिला रहमी दा रहम मज़मून बयान कर रही, गल सिला रहमी दी हजरत माँ जी खतीजा की फरमा रही ने, फरमाया कि इन्नका लतासिलुर रहिमा। फरमाया सोहणियो तुहानू कादी टेंशन पै गई है? फरमाया तुसी ते लोगां दे नाल सिला रहमी करदे हो, रब तुहानू जाया करेगा। नबी पाक दे यार लोगां दे बोझ उठाया करदे, कमांदे नबी पाक ने, खांदे गरीब लोग ने।
बोझ नबी अलैहिस्सलाम अपने कंधियां दे चुक चुक के खुदा दी कसम लोगों के घर जाके पहुँचाया कर दे। इन्ना कल आता सिलो राहिमा, फरमाया महबूब जी तुसी ते लोगों ना सिला रहमी कर दो। सिला रहमी करने वाले नू रब कदी जाया करता? बल्कि ना हज़रत हुसैन रजी अल्लाह हो या हसन या हुसैन सन रजी अल्लाह तआला नो, मेरे वाल वेखो जरा, जो उन्होंने गुसल देन लगे ना तो कंधे ते निशान पै वेखे। नवाण वालिया ने गुसल देन वालिया ने वेख्या कि उन्होंने शहजादियों के विचों या हसन या हुसैन ने उन्होंने ना कंधियां ते निशान पै होए। बंदा कह लगा यार पता नहीं निशान कादे पै ने। बाद पता चलिया कि ये लोगों के बोझ चुक चुक के लोगों के घर पहुँचाया करते सन। ये लोगों का बोझ चुक चुक के कंधे ते निशान पै ने। खुदा दी कसम नाना भी लोगों के बोझ उठा के घर च पहुँचाने वाले और अगो जनाब दोते भी खुदा दी कसम शहजादे जन्नत दे। हजरात गिरामी कदर दुआ मैं करदा जे या अल्लाह सानू भी सिला रहमी करने वाला बना दे। आई जरा तवज्जो फरमाइए। तीसरी दलील ते गौर कीजिए। इमाम कुल कायनात अलैहिस्सलाम दे कोल एक आने वाला आया है। एक गल हदीस बड़ी प्यारी जो सुनने वाली जे मैं बड़ी मुहब्बत दे नाल एक आने वाला नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आया है। आगे कहन लगा सोनिया तुसी अल्लाह वालों पैगाम लैके आए हो? आ फरमा लगे हाँ हाँ अल्लाह वालों पैगाम लैके आया वा। ये सवाल करदे सोनियो की पैगाम लैके आए हो? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया प्यारिया सुन ले। फरमाया मैं बुतां नूं तोड़न वास्ते आया वां ते दिलां नूं जोड़न वास्ते आया वां। मैं तो बुतां नूं तोड़न आया तो दिलां नूं जोड़न आया वां। ओए देखो मेरे पैगंबर लोगों के दिल जोड़िया कर दे, मेरे पैगंबर लोगों से सुलह करवाया कर दे। अल्लाह अल्लाह फरमाया तसाअलूना बिही वल अरहाम। ऐ मैं एक नुकता तुहानूं वहा दसन लगा, गौर करिया जे। इमाम कुल कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुरान नाज़िल होया ना, वल अरहाम करीबी रिश्तेदार। अल्लाह पाक ने मेरे वाल वेखो यार सारे अल अरहाम ए लफज अल्लाह ने कुरान च 7 वारी बोलिया। बोलो कितनी वारी? सारे बोलो कितनी वारी? अरहाम दा लफज अल्लाह ने 7 मुकाम ते बोलिया है। ते हफ्ते वे दिन भी किन्ने होंदे ने? अरहाम ये लफज कितनी वारी बोलिया ते हफ्ते वे दिन किन्ने होंदे ने? अल्लाह ने 7 वारी बोल के इशारा इस बात वाल कीता है। फरमाया जिवें हफ्ते में 7 दिन होंदे ने 7 दिन तुसी सिला रहमी करनी। 7 दिन ही हर रोज सिला रहमी करो। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करे आज गौर करे आज। कुरान पाक दा दूसरा मुकाम है। फरमाया कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह पाक ने बड़ा प्यारा जुमला बयान फरमाया, बड़ी प्यारी है ते मुबारक है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा। फरमाया रब तुहानू हुक्म दे रहा है। हालांकि जिस रब ने तुहानू नमाज पढ़न का हुक्म दिता है, जिस रब ने तुहानू रोजे रखन का हुक्म दिता है, जेड़े रब ने तुहानू सदका खैरात करन का हुक्म दिता है, जेड़े रब ने तुहानू होर गल्लां दा हुक्म दिता है, अल्लाह पाक ने इसे बात का हुक्म दिता है, उसे रब ने यह भी हुक्म दिता है। और मैं कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं हुक्म दे रहा वां अदल इंसाफ करन दा ते करीबी रिश्तेदारां ते माल खर्च करन दा। ते अरहाम कितनी बारी आया सी कुरान च? मैं बार बार पूछ लेना कितनी बारी आया सी? ते हफ्ते में दिन भी किन्ने होंदे ने? ते 7 दिन सिला रहमी करनी है। ते एड़ा लफज है ना इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, ये कुरान में आया 24 बारी। कितनी बारी आया? ते घंटे भी दिन च किन्ने होंदे ने? ए नुक्ते जरा देन च रखे जे। हुण एक दिन च किन्ने घंटे होंदे ने?
24 ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ? अल्लाह दसना ये चाहते हैं कि 24 घंटे तुसी अपने रिश्तेदारों में सिला रहमी करनी है। अभी तो निकी निकी गल तो वेर पैंदे हैं ना, जे असी किसी माड़े भैन भरा नूं किते आटा लै दिता कि उन्हां दी खिदमत कर दी, किते रुपया 1000 दे दिता तो फिर असी उन्होंने जितलाने फिरने, तेरे फलाने मौके पर मैं पेश आया, फलाने मौके पर मैं तेरी जरूरत को हल किया। और यार इस शहर दी शावां ज़हन च ना रखिया करो, ये माल ढलदा परछावां है। अज मेरे को तो कल तुहाडे कोल परसों इस माल के उत्ते तराने सके भैन भरावां नूं छड्ड दिंदे आ ना। अल्लाह अल्लाह तवज्जो फरमाया जे इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताए ज़िल कुरबा। फरमाया अपने भरावां ते खर्च, अपनी भैणां ते खर्च, अपने रिश्तेदारां ते खर्च, अपने भैन भरावां नूं दिओ। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करे जे कुर्बानी का मौका आया, नबी अलैहिस्सलाम कुर्बानी करके फरमाया करदे सन सहाबा उस औरत के घर भी जाके गोश्त दे के आओ, उस औरत के घर भी गोश्त पहुँचा के आओ, उस फलां औरत के घर में भी गोश्त दे के आओ। तो अज़वाजे मुतहरात फरमांदियां ने सोने वो फलां फलां औरतां केड़ियां ने? ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये औरतां जेड़ियां ने ये मेरी बीवी खतीजा दियां सहेलियां ने। इनू कहंदे जे सिला रहमी। ये जड़ियां ने ना ये मेरी बीवी दियां सहेलियां ने। ते नबी अलैहिस्सलाम उन्हां नूं सारी जिंदगी भुल्ले नहीं, बल्कि उन्हां दे घर गोश्त पुचवा के आया कर दे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करे अजे वही था ज़िल कुरबा। मगर दुख दी बात ईद का मौका आंदा, ईदगाह दे अंदर असी हर बंदे नूं गले ला लैने आ, पर सका भरा खड़ा है ते सके भरा नूं असी अपने गले ला के राजी कोई नहीं। और यार दुख की बात वे असी हर अपने नमाजी नूं सीने ला लैने आ, हर जमाती नूं सीने ला लैने आ, मगर सका भरा परे खड़ा वेंदा है मेरे भरा को 4 पैसे आ गए उन्हें मैनू बुलाना छड़ दिता है, वो भरा मैनू नहीं मिलता, सारे नूं मिलता पिया, सके भरा नूं गले लाना गवारा नहीं कर रहा। बड़े दुख की बात है, गौर करे जे तेरे दरवाजे तो अवारा कुत्ता दुध पी जाए मगर उस गली में तेरा सका भरा रहिंदा होवे, कदी अपने सके भरा नूं तू जाके पुछिया कोई नहीं। तेरे दरवाजे तो मंगण वाली पैसे लै जाए ते लै जाए, नाल दे महल्ले तेरी भैन रहिंदी है गरीब है, कदी भैन दे घर जाके पुछिया नहीं भैने तेनू केड़ी शै दी लोड़ है। अल्लाह जानदा ऐ साडे हालात बन चुके ने, असी अपने भैन भरावां नूं छड़ दिता है, असी अपने रिश्तेदारां नूं छड़ दिता है। फरमाया वईता इज़िल कुरबा वयनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर। अल्लाह अल्लाह अपने सके भैन भरावां ते माल खर्च करिया करो, अपने रिश्तेदारां नूं जरा जा जाके पुछिया करो। आओ लोगों नमाज़ां पढ़ी जाने, हज ते हज करी जाने, उमरे ते उमरे करी जाने, होर भी बड़े काम ने, मगर भैन भरा नाराज है। क्या फायदा यार ऐसियां नमाज़ां दा, क्या फायदा इस रोज़े दा? आओ मैं तुहानूं नबी अलैहिस्सलाम दी हदीसे पाक सुनावां। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि हर सोमवार नूं ते जुमे रात नूं मेरे वाल वेखो, मेरे वाल जे मेरे विच कमी है तो मैं अपनी कमी नूं दूर करके उठा। मज़ा तो तां है ना जे अज जुमा पढ़ के जावे तो अपने सके भैन भरा नाराज नूं जाके मना लवे। मज़ा तो तां है, ये क्या गल होया कि इत्थों चले जाना झोलियां झाड़ के जिवें आए सा उंज ही चलेगा। नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि हर सोमवार नूं हर जुमे रात नूं अमल अल्लाह दे सामने पेश किए जाते हैं। फरमाया कि अल्लाह सारे नूं माफ़ कर देंदा है, मगर 2 अफराद ऐसे ने जिन्होंने अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। सहाबा इकराम फरमाते हैं या नबी अल्लाह वो 2 बंदे केड़े ने जिन्होंने अल्लाह माफ़ नहीं करेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मेरे नाल शिरक करने वाला, दूजा कता ताल्लुक ही करने वाला।
कता ताल्लुकी करने वाला कोई अमल कबूल नहीं है। नमाजा भी जाया, रोजे भी जाया, हज भी जाया। अल्लाह अल्लाह इन्हां चीज़ों वाल गौर करो। जे सके भैन भरा नाराज ने ते जनाब उंज ही लगे फिरने, हज ते हज भी करी जाने, नमाजा ते नमाजा भी पढ़ी जाने। अगर चाहते हो कि साडे अल्लाह दे हाँ अमल कबूल हो जान, खुदा दी कसमें अपने भैन भरावां नूं जाके मना लो, अपने रिश्तेदारां नूं जाके मनवा लो। अगर तुसी ना मनाया सारे अमल गारत हो जाएंगे। रब नूं इन्हां अमलां दी जरूरत नहीं है। इस वास्ते दुआ मैं कर लगा जी आमीना मसल गूंज जाए। ऐ मेरे अल्लाह सानू सारियां नूं सिला रहमी करने वाला बना दे। मुसलमानों कथा तलकी ना करया करो। ओए 3 दिन तो वध किसी नाल बोलोगे नहीं, तुहाडी इबादत कन्ना तो उत्ते नहीं जानी। अल्लाह अल्लाह फरमाया या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। मैं तुहानू एक बात सुनावा। इमाम कुल कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सहाबी है हज़रत ज़ैद, जिहदा कुरान अंदर भी जिक्र ओ एक वाहद सहाबी है जिहदा नाम कुरान पाक अंदर अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है। ये वेखदा वकांदा आया है, गुलाम है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा बना लिया, मुंह बोलिया बेटा बना लिया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन पता की फरमाया, ज़ैद मैं तेरा निकाह करना चाहना वा अपनी फुफी दी बेटी दे नाल, हज़रत ज़ैनब दे नाल निकाह। नबी अलैहिस्सलाम गए और मैं फुफी जान हज़रत ज़ैनब का निकाह जड़ा ना वो मैं ज़ैद नाल करना चाहना। वाह ज़ैद मैं तेरी अज़मत तो कुर्बान जावा। है किसी का रिश्ता कोई करे, किसी मामा चाचा करे, यार ज़ैद मैं तुहाडी अज़मत तो कुर्बान जावा जिहदा रिश्ता भी कायनात दे इमाम ने कीता है। अच्छा फरमाया कि हज़रत ज़ैनब कहन लगियां गल ये कि मैं उच्चे खानदान दी हाँ, ये गरीब वेखदा वकांदा आया जिहदा अगे पिछे पता ही कोई नहीं। लिहाजा उन्होंने कहा जी मैं कोई नहीं करना। अल्लाह ने कुरान नाज़िल, मैं तफसीर च नहीं जाना चाहता। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जेड़ा मर्द जेड़ा औरत जेड़ी औरत नबी अलैहिस्सलाम दा हुक्म आन तो बाद ना मन्ने रब उन्होंने मोमन मनदा नहीं है। निकाह हो गया तो अल्लाह वालों ना निभी तलाक हो गई। हज़रत ज़ैद ने तलाक दे दी। हुण भैन चल जाए ना भरा को रिश्ता लैन, भरा इनकार कर दे, भैन उत्थे कह के उठदी है तू मेरे वास्ते, भरा चलेगा ना भैन को रिश्ता लैन, जब भैन ने इनकार दिता है तो भरा उत्थे उठ के कह के आया, उठन लग्या कह के आया भैने तू मेरा बूहा ना टप्पी, तू मेरे वास्ते मर गई, मैं तेरे वास्ते मर गया, तू मेरे वास्ते मर गई, मैं मर गया तू मेरे मरे का मूँह ना वेखी, तू मैनू ना इनकार क्यों किया। ओ यार मैं कदी कदी सोचना होना मेरे वाल वेखो यार, अगले का धी है अगले का पुत्र है, वो दवे ना दवे ये गुस्सा नाराज़गी बनती। बोलो सही यार, गुस्सा नाराज़गी बनती। हज़रत ज़ैद गुलाम सन ते नबी पाक ने निकाह किया अपनी फुफी की बेटी ज़ैनब दे नाल, ना निभी तलाक हो गई तो नबी पाक का हक बनता सी ना कि ज़ैद तो ये गुलाम से तेरा निकाह मैं एडे उच्चे खानदान च किया, लिहाजा तू अज तो बाद मैनू बुलाना, मैनू दिखाओ जे नबी पाक ने किते कहा होवे। अच्छा फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इद्दत गुजरन तो बाद ओहदे नाल फिर नबी पाक ने खुद निकाह कर लिया, क्योंकि मुँह बोलिया बेटा सक्का पुत्र तो नहीं सी ना, मुँह बोलिया बेटा क्या निकाह नबी अलैहिस्सलाम ने। फिर नबी अलैहिस्सलाम गुस्से नहीं होए, नाराज़ नहीं होए, नबी अलैहिस्सलाम नाराज़गी का इजहार नहीं किया, बल्कि नबी पाक ने हज़रत ज़ैद का दूजी जगह से रिश्ता लभ के नबी पाक ने फिर रिश्ता करवा छड़िया। इनू सिला रहमी कहा जाता है। फिर अल्लाह पाक ने पुत्र दिता, उसामा नाम रखिया। ओ मशहूर वाकया ओ लश्कर उसामा, नबी पाक ने फिर एक लश्कर तैयार किया, हज़रत ज़ैद के पुत्र उसामा नू लश्कर का अमीर भी मुकर्रर किया। नबी पाक ने तो मुँह नहीं बनाया किसी नाल,
अरे मुँह बनाई फेरने उन्हें रिश्ता नहीं दिता। अल्लाह अल्लाह सिला रहमी कीजिए वला तसालो नबी वल अरहम। ओ यार जे इस गलों नाराज हो अगले दी धी अगले दा पुत्र है वो दवे ना दवे मुँह ना बनाया करो, ठीक है नहीं दिता ना सही, ऐ ही सोच के उठ पिया करो यार नसीबां च कोई नहीं सी, नसीबां विच हुंदा ते हो जांदा। इन्हां गल्लां ते नाराज़गी दा इज़हार ना करिया करो। आइए तवज्जो कीजिए, अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर एक कीड़ी का जिक्र फरमाया, चिऊंटी का जिक्र फरमाया है। अरबी दे अंदर चिऊंटी नूं की कहंदे ने? नमल। की आंदे ने? चिऊंटी नूं अरबी विच की आंदे ने ते इंग्लिश विच की आंदे ने? चलो खैर है, चलो अरबी तो आउंदी है ना माशाअल्लाह। यानी चिऊंटी नूं अरबी अंदर नमल कहा जाता है। अल्लाह पाक ने चिऊंटी दी ओ आदत इन्नी चंगी लगी, अल्लाह पाक ने कीड़ी दे नाम दी सूरत बना छड़ी है। ओ आदत बड़ा केड़ी सी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लैके आ रहे ने ते वेख्या कीड़ियां बाहर फिर रही ने। एक चिऊंटी ने वेख्या सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे ने, उन्हां दा लश्कर आ रहा है ते आवाज़ दे रही है। अल्लाह पाक ने उस आवाज़ का जिक्र कुरान पाक दियां तां बनाया है। अरे मैं या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। हज़रत सुलेमान पैगंबर नूं वेख के चिऊंटी की कह रही है, मेरी सहेलियो और मेरी बरादरी वालियो अपनी अपनी खुड्डां च चले जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम महाराज ने उन्हां दा लश्कर आ रहा कि तुहानूं पैरां थल्ले रख के रौन दा देण, उन्होंने नहीं पता चलना, अपनी अपनी खुड्डां च वड़ जाओ। खुदा दी कसमे आ वेखो चिऊंटी चिऊंटियां नाल सिला रहमी कर रही है, कीड़ी कीड़ियां नाल सिला रहमी कर रही है। रब्बुल आलमीन नूं इस चिऊंटी दी सिला रहमी इतनी पसंद आई है, रब्बुल आलमीन ने उस चिऊंटी दियां गल्लां नूं कुरान दियां आयतां बना के नबी अलैहि सलाम दे सीने पाक ते नाज़िल फरमा दिता है और फरमाया कि जब तक कुरान रहेगा चिऊंटी दी सिला रहमी नूं बयान करने वाले करते रहेंगे। ओ यार इत्थे ते कीड़ी कीड़ियां नाल सिला रहमी कर रही है ते भरा भरा नूं फैर मार रहा है, कीड़ी कीड़ियां नाल सिला रहमी कर दी है। सका भरा सके भरा नूं फैर मार रहा है, मर जाए चलो इहदी जमीन भी मेरे हाथ आ जाए, इहदा मालक भी मैं बन जावां। अल्लाह अल्लाह भरा भरावां नूं कतल कर रहा है, भैणां नूं कतल कर रहा है, पुत्र प्यो नूं कतल कर रहा है, प्यो पुत्र नूं कतल कर रहा है। नाम मेरे वीर ना मेरे वीर इन्हां सिला रहमी करिया कर, रिश्तेदारां दा कतल ना करिया कर, इन्हां दे नाल मिल जुल के रिया करो। तवज्जो करे अजे मैं जो पैगाम देना चाह रहा वां, आओ मैं तुहानूं अल्लाह दे एक बड़े प्यारे नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा वाक़या भी बयान कर दिया। फरमाया कि तसालूना बिही वल अरहम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे जे सन ना, भरावां ने वेख्या बाप बड़ा प्यार करता, इंशाअल्लाह किसी वेले वाक़या बयान करांगा। मैं सिर्फ इशारा करना चाहना, भरावां नूं ना वेख्या गया, हसद च आ गए, बाप दे कोलों खोया, बाप कोलों लै गए, जनाब जाके खूह अंदर सुट दिता। हज़रत यूसुफ वेखदे वकांदे मिस्र पहुँच गए और जनाब फिर अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं बादशाह मिस्र बना दिता। फरमाया फिर वो भी वक्त आया है, अज सारे भरा यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सामने खड़े ने, नज़रां नीवियां ने। ते यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की बयान फरमाया है? फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम। फरमाया भराओ मैनू दिल में सोचते तो होणगे, ऐ वो मेरे भरा ने जिन्हां ने मैनू छोटे हुंदियां बाप दे कोलों मैनू खिच लिया, खूह अंदर सुट दिता, मैं किवें जिंदगी गुजारदा रहा वां। हालांकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भरावां नूं फाहे भी ला सकते सन, उन्हां नूं सज़ा भी दे सकते सन, सारा कुछ दे सकते, क्योंकि साहिब इक़्तिदार सन, ताकत दे अंदर सन, सारा कुछ कर सकते सन। मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यारे जुमले बयान फरमाए ने। फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम। फरमाया भराओ मैं तुहानू माफ़ कीता, भरावां कोलों बदले नहीं लईदे।
ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲੇ नहीं ਲਈਦੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ माफ़ कर छड्या है, इनू सिला रहमी किया जाता है। आइए जरा तवज्जो फरमाया जे नबी अलैहिस्सलाम ने की बयान फरमाया है। आपने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलियसिल रहिम। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा आखिरत दे दिन ते ईमान ले आंदा है, अल्लाह ते ईमान ले आंदा नो चाहिदा कि सिला रहमी करे। बोलो की करे? जेड़ा बंदा अल्लाह ते ईमान ले आंदा है ते आखिरत ते ईमान ले आंदा है, वो मोमन है। ते मोमन दा काम की है? रिश्तेदारियां नू जोड़ना, ना कि रिश्तेदारियां नू तोड़ना नहीं, बल्कि रिश्तेदारियां जोड़दा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही फलियसिल रहिमा। बुखारी पाक अंदर रवायत है। जरा बहार पैदा कर दियो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने फरमाया कि जेड़ा बंदा चाहता है ना कि ओदी उम्र लंबी हो जाए ते रिज़्क च बरकत पै जाए, रोज़ी बढ़ जाए, उम्र लंबी हो जाए, उन्होंने चाहिए कि रिश्तेदारियां नू जोड़े, सिला रहमी करे। बोलो की करे? सिला रहमी करे। जे चाहते हो ना तुहाडी उम्र वध जाए, सिला रहमी करया करो। जे चाहते हो कि रिज़्क च बरकत पै जाए, रोज़ी वध जाए, सिला रहमी करया करो। लो मैं तुहाडे सामने एक लाहौर दा वाक़या सुनान लग्या जे। पूरी गल सुनिया जे तवज्जो नाल। साड़ी जमात दे बहुत बड़े आलम दीन कारी सुहैब मीर मुहम्मदी हाफिज़हुल्लाह तआला ने एक वाक़या सुनाया जे। यह वाक़या तुहानू मैं सुनान लग्या तो पूरी मुहब्बत नाल सुनिया जे। फरमान लगे लाहौर दे अंदर, आ वेखो उम्र किवें बदन लगी है। कह लगे लाहौर दे अंदर एक बंदा है, ओदी वालदा हॉस्पिटल अंदर दाखिल है। हॉस्पिटल दे अंदर दाखिल है तो अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्होंने ICU वार्ड दे अंदर दाखिल कर दिता गया। ओदे किसी भरा भैन ने फोन किया, वीर वालदा दी तबीयत बड़ी ख़राब है, जल्दी हॉस्पिटल दे अंदर पहुँच। इन्हें जनाब उतो ड्यूटी तो फारग होया, इन्हें जनाब बाइक कड्डी है, बड़ी स्पीड दे नाल जा रहा है ते दिल दे अंदर सोचदा जा रहा है पता नहीं माँ बचदी है कि माँ फौत हो जाती है। जिहो जा फोन आया पता नहीं अल्लाह खैर करे की बनता है। ये स्पीडो स्पीड जा रहा है। रस्ते दे अंदर वेख्या सड़क दे विच एक बिल्ली पई है। बोलो की पई है? बिल्ली दी ना लत्त कोई शहर नंगी, लत्त ओदी टुट गई। तो ये बंदा ना बाइक खड़ी करके ना कह लगा माँ पता नहीं बचती है कि नहीं बचती। तवज्जो करियो सोहणियो, इनू माँ भुल गई, इन्हें खुदा की कसम। आ वेखो रब ने विखाना जो सी, बिल्ली चुक लई। बिल्ली नू चुक के हॉस्पिटल दे अंदर लै गया, जानवरां दे हॉस्पिटल जाके ओदी ट्रीटमेंट करवाई। ओदी जनाब पट्टी वगैरह करवा के महफूज जगह ते रख के दुध वगैरह पा के खुराक वगैरह रख के दोबारा हॉस्पिटल में तुर पिया। जो हॉस्पिटल के अंदर गया को घंटा डेढ़ लग गया, जांदियां जांदियां घंटा 2 घंटे लग गया। जो पहुंचिया हॉस्पिटल के अंदर अपनी भैन को कह लगा भरा भैना अम्मी कितने? कह लगी अम्मी की तबीयत ना अचानक ठीक हो गई है, उन्होंने वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिता है। ये कह लगा जिहो जा फोन किया सी मैनू तो नहीं उम्मीद बचन दी, तू झूठ बोलनी है, दस मेरी माँ कितने? उन्हें कहा भरावा वो अंदर वार्ड च दाखिल कर दिता उन्होंने। ICU वार्ड चो अचानक तबीयत बेहतर हुई है, उन्होंने वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिता है। ये पुत्र अपनी माँ को जाके कहता है ए मुजफ्फर कॉलोनी वाले हो, फैसलाबादी हो, गल गौर ना सुनिया जे। अपनी माँ को कह लगा अम्मी जी की होया सी? ए माँ कह लगी पुत्र मैनू कोई पता नहीं लगा, अचानक अखां के नेरा आ गया, बेहोश हो गई, मैनू कोई पता नहीं मैं कित्थे हाँ, मगर मैं वेख्या मैनू ख्वाब आई है बेहोशी दे आलम अंदर। मैं की वेखनी हाँ, एक बिल्ली अपने अगले पैर चुक के दुआ कर रही है। हाय हाय हाय। उन्हें बिल्ली नू चुकिया ते हॉस्पिटल दे अंदर लै गया। ओ इत्थे दे जानवरां दे नाल तुसी प्यार करोगे,
उन्हां दा ख्याल करोगे तो अल्लाह राजी होएगा। जे भैन भरावां नाल प्यार करोगे तो रब राजी क्यों नहीं होएगा। कहन लगी पुत्रा मैं ख्वाब अंदर वेख्या बिल्ली अपने अगले पाँव उठा के दुआ कर दी है बई ये मैं ख्वाब अंदर वेख्या बेहोशी दे अंदर मैं वेख्या है ते मैनू अचानक मेरी तबीयत बेहतर हो गई है। कारी साहब ने वाकया सुनाया, मुस्तनद आलिम ने साड़ी जमात दे कारी सुहेब मीर मुहम्मदी फिदाउल्लाह ने वाकया सुनाया है। ये वाकया मैं तुहाडे सामने तां रखिया है। मुसलमानों जे जानवरां दे नाल प्यार करोगे उन्हां दे नाल मुहब्बत करोगे ते तां भी अल्लाह तुहाडे तो राजी हो जाएगा। आओ लोगों लाहौर दे अंदर एक तबीब है, उहदे कोल एक बंदा चला गया, कहन लगा ऐ हकीम साहब मैनू ब्लड कैंसर है यार मैं दुआ करदा जे आमीन कह देना। अल्लाह इस मजमे अंदर जितने बीमार ने अल्लाह इस मजमे अंदर जिन्ना जिन्ना दे जो अजीज व करबा बीमार ने अल्लाह सब नू सेहत कामला आजला शाफिया नाफिया नसीब फरमा दे। कहन लगा जी मैनू ब्लड कैंसर है हकीम साहब मैं बड़े डॉक्टर फेर आया वहाँ बड़े बड़े हकीम फेर लिया मैनू किसे तुहाडा दसिया तो मैं तुहाडे कोल आ गया वहाँ। ये कहन लगा तू कित्थे दा रहन वाला है। ये लाहौर दा हकीम है जिहड़ा गल सुना रहा। कहन लगा ये उन्होंने पुछदा भी कित्थे दा रहन वाला, कहंदा फैसलाबाद के करीब को गाँव है मैं उत्थे दा रहन वाला वहाँ। ये कहन लगा जनाब हुण कित्थे रहिंदे हो। पहले कहन लगा मैं लाहौर रहना वा। हकीम कहन लगा नहीं पिछों पिंड तुहाडा किहड़ा, कहने फैसलाबाद के करीब को गाँव है उत्थे दा रहन वाला रेर मैं लाहौर रहा वा। कहन लगा तुहाडी माली हालत किवें दी। कहन लगा मैं अमीर बड़ा वा। हकीम कहन लगा तुहाडे रिश्तेदारां दी माली हालत, कहन लगा गरीब बड़े ने। मैं अमीर बड़ा वा गरीब बड़े ने। हकीम कहन लगा उन्हां गरीबां दे घर भी कदी चक्कर लाया ही कि नहीं। ये कहन लगा जो गरीब ने मैं उन्हां दे घर विच नहीं जांदा। अल्लाह जानदा है कई दौलत दे भुखे खुदा दी कसम शोहरत दे भुखे दौलत दे नशे दे अंदर भैन भरावां नूं छड्डिया। जिहड़े गरीब भैन भरा ने उन्हां नूं तां नहीं मिलदा। इन्हां को बैण वास्ते मेरे वास्ते चारपाई भी अच्छी नहीं, इन्हां कोल कुर्सियां भी चंगियां नहीं जिन्हां ते मैं जाके बह जावां। मैं ते अमीर बड़ा वां भैन मेरी गरीब है। मैं इस वास्ते भैन नूं नहीं बुलांदा। मैं अमीर बड़ा वां भरा मेरे गरीब ने मेरा स्टेटस नहीं कि मैं अपने गरीब भैन भरावां नूं मिलां। गौर करिया जे खुडियां च ना एक वाकया होया, मैं हालाते हाजरा भी दस रहा तुहानूं। चलो पहले आ वाकया मुकम्मल कर लीए। कहन लगा जा पहले चले जा अपने भैन जा 20 दिन रह के आ अपने पिंड। किसी ने नलका लवा दे, किसी की छत पक्की करवा दे, किसी के जेड़े जेड़े काम आने वाले ना गरीबों के काम करवा दे। ये खैर कहन लगा जा अपने पिंड चले जा 20 दिन रह के आ तो उन्होंने सारे काम करवा के आ। ये खैर अपने पिंड गया, इत्थे जाके नलका लवाता, किसी की मोटर लवाती, किसी की छत पक्की करवा दी, किसी का मकान बना दिता। 20 दिनों तो बाद जो आया हकीम दे कोल हालत उसकी बेहतर हो गई है। तो हकीम साहब जाके कहन लगे जाके अपना टेस्ट करवा के आ। हालांकि दवाई कोई नहीं खाधी, बोलो दवाई कोई नहीं खाधी, सिर्फ इन्होंने गरीबों ने पैसा ही खर्च करके आया, अपने भैन भरावां ने पैसा ही खर्च करके आया। हकीम साहब कहन लगे जाके अपना टेस्ट करवाया। और मरीज कहन लगा खुदा दी कसमे मैनू कैंसर रब ने जड़ां तो ही मुका छड्डिया। जड़ां चो ही रब ने कैंसर मुका दिता, कैंसर की बीमारी खत्म हो गई है। अल्लाह जा हुण असीं रिश्तेदारी पता क्यों किवें तोड़ने आ। साडी रिश्तेदारी तोड़न दे अंदाज भी इदां ने। कसूर मैं गया खुडियां च, उत्थे कहन लगे जी कि बड़ा लैंड लाड़ आदमी है। उन्हें ना जनाब ओदी बेटी सी उन्हें मंगनी कर दी। मुंडे वाले भी तगड़े कुड़ी वाले भी तगड़े। खैर मंगनी शंगनी हो गई बड़ी धूमधाम दे नाल। ए वेखो साडी रिश्तेदारियां तोड़न दे सबब की ने। तो ये ना मुंडे अपना बेटी वाले गए, ओदा मुंडा सी कुड़ी वाला, ओदा बेटा सी, ते ये बेटी वाले गए मुंडे वाले दे घर। उन्होंने वो चाह वगैरह रखी, बिस्कुट वगैरह रखे। वो मुंडा भी बह गया जड़ा मंगया सी इधर। ओदी भैड़ी किस्मत उन्हें ना केक चाह विच डुबो के खा लिया। बस बोलो चाह विच, ओ बोलो तो सही यार। और तुसी ना डबोया जे किते मंगनी ना टुट जाए तुहाडी। खुदा दी कसम मंगनियाँ टुटदियां ने ऐसे वास्ते। इसको खाने की सेंस नहीं है, बदतमीज है ये बंदा पूछे भी चाह कादे वास्ते, रस डबोन लई है होर कादे लई है, बोल
लो जी मुंडे ने सिरे गल जैनमन सुना रहे हैं, जैनमन। उस मुंडे ने केक ना चाह च डुबो के केक खा लिया, कुड़ी वाले मंगनी तोड़ के आ गया। उन्हें कहा मुंडा बदतमीज, इनू खान की तमीज़ नहीं। दसो ए मंगनी टुट गई है चक्कर च। बंदा पूछे भी वो मुंडा चंगा होंदा, उन्हें कहा ही मेरी मंगनी टुट गई, वो चाह ला कप फड़दा अपने होने वाले सोहरे के उत्ते रोड़ दिंदा। चल तेरा तो सत्यानाश होवे, तू चंगी मंगनी तोड़ के चलना। अच्छा वो ना चौधरी साहब कह लगे, वो जड़ा सी ना बेटी आ अपना मुंडे का बाप, वो कह लगा जो मंगनी तो टुट ही गई है, तो कुड़ी के प्यो नूं कहण लगा एक बारी मेरे कहण ते ज़रा चाह में डुबो के खा दे सही। वो कहना नो 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 ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। उन्हें कहा यार तेरी मेहरबानी, मंगनी तो टुट गई है, वो रिश्ता होना नहीं होना बाद की गल। चल यार मेरे कहण ते एक बारी तो डुबो के खा तो लै। उन्हें को 5-7 बारी गया, तो उन्हें ना केक डुबो के चाह च खादा, तो वह कह लगा ईमानदारी ना दस उंज बहुता मज़ा आता है या डुबो के खाने का मज़ा बहुता आता है? कह लगा जी मज़ा तो इंज ही बहुता आता है। मैं गल सुना रहा वां कि साड़ियाँ रिश्तेदारियाँ तोड़न दे असबाब वेख लो। अल्लाह अल्लाह लो आखिरी गल सुनो जो मैं पैगाम देना चाह रहा वां। अरे मैं या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। अल्लाह जानदा सिला रहमी करोगे अल्लाह उम्र च बरकत पा देगा, उम्र बढ़ा देगा। और सिला रहमी करोगे अल्लाह रिज़्क वधा देगा। रिज़्क पता किवें वधदा? बुखारी अंदर रवायत मौजूद है, एक बंदे ने ज़मीन वेची है, दूजे ने ज़मीन लै लई है, उन्हें हल वाया, वो फाड़े दे नाल एक सोने का मटका अड़िया बाहर निकल आया है। वह भी ईमानदार है, ज़मीन वेचण वाला भी ईमानदार है, लैण वाला भी ईमानदार है। इन्हें जनाब इस तरह सोने का परा मटका चुकया है, तो वो घर में चला गया, कहन लगा वीर ए तेरी जमीन के विचों सोने का मटका निकलिया है, ये तेरा है? वो कहन लगा ना ना, जे मैनू पता होंदा मेरी जमीन च खजाना है तो मैं जमीन वेचनी, मैं कट के गुजारा ना कर लेंदा, लिहाजा ये ज़मीन तेरी है। वो कहन लगा ये सोना तेरा है, वो कहन लगा तेरा है, वो कहन लगा तेरा है, वो कहन लगा तेरा है। उन्हां दियां लड़ाइयां तेरे तेरे दियां सी, साडियां लड़ाइयां मेरे मेरे दियां ने, साडियां लड़ाइयां मेरे मेरे दियां ने, उन्हां दियां लड़ाइयां सी तेरे ते। वो कहन लगा यार तेरा, वो कह लगा तेरा है। वो कह लगा यार तेरी मेहरबानी, मैं सिर्फ ज़मीन के पैसे दिते सन, मैं खजाने के पैसे नहीं दिते। उन्हें कहा ना यार जे मैनू पता होंदा मैं ज़मीन च खजाना मैं कट के गुजारा ना कर लेंदा, लिहाजा तेरा है। अल्लाह वालों एक आया बंदा के कहन लगा की गल है, क्यों झगड़ते पे हो? वो कहन लगा यार को मैं ज़मीन लई सी, ज़मीन जो खजाना निकलिया एदा मेरा नहीं। वो कहन लगा जी एदा मेरा नहीं। खैर कहन लगा फैसला होने लगा जे, कोई साढ़े वर्गा होंदा उन्हें कहना फैसला होंदा पिया, तुसीं अखां बंद करो। क्यों जी? या मेरे वर्गा मौलवी जाता, उन्हें कहा की गल है? जी खजाना निकलिया लेंदा नहीं। उन्हें कहना मैनू दिओ ना, मेरा मदरसा पिया बनदा है, मैं लै जाना तुसीं जाओ। बोलते नहीं, साढ़े तो फैसले भी इंज दे ना। वो कहन लगा यार कदी तुसीं मेरा मतलब क्यों झगड़ते पे हो? कहन लगा जी गल तेरी औलाद है? कहन लगा जी मेरा पुत्र है। उन्हें कहा तेरी? उन्हें कहा मेरी धी है। उन्हें कहा गल ये आ इन्हां दोवां दा आपस में निकाह कर दिओ, ये खजाना इन्हां विच तकसीम कर दिओ, इन्हों दे दिओ। अल्लाह अल्लाह वेखो सिला रहमी कर रहे ने, अल्लाह दौलत भी दे रहा है, इतने जवानी भी दे रहा है। इतने किसी का भाई वैली करके वेख लो तो रिश्तेदारियां टुट जांदियां ने। वो लोग कारोबार करते थे, रिश्ते जोड़ते सन, असी किसी ना भाई वाली कर लीए, कारोबार कर लीए, रिश्तेदारियां टुट जांदियां ने। उन्हां साडे अंदर फर्क है। इंशाअल्लाह सिला रहमी करो। लो मैं आखिरी गल सुना के बाद खत्म। सऊदीया च ना एक आलमे दीन जुमा पढ़ा रहा है, उन्हें कहा गल यह है कि सिला रहमी करो, रिश्तेदारियां जोड़िया करो, रिश्तेदारियां तोड़िया ना करो। उन्हें जिन्ने अफराद बैठे उन्हें मेरी एक एक ते नज़र है,
हर एक का चेहरा मैनू पता है, हर चेहरे का मैनू पता है वो किस कंडीशन च बैठा है। दुआ करो अल्लाह सारे सलामत रखे। अच्छा वो कह लगे मैं वेख्या दो बंदे ना रोन डे सारो कितार रो रहा है। उन्हें कहा खैर जो कह लगे खुतबा खत्म होया ना तो उथे मसीत ही उन्होंने जफी पा ली, आपस मिल पे। उन्हें कहा जी खुतबा सुनिया सिला रहमी थे, बस बड़े अरसे दे नाराज सा, आपस सुलह कर ली। चंद दिन गुजरे, उन्होंने विचों एक बंदे ने ना उस आलमे दीन फोन किया, कह लगे जी वो जिहदे नाल मैं सुलह की सी ना वो अल्लाह नूं प्यारा हो गया है, फौत हो गया है, वह जनाजा भी पढ़ाया गया। बात करना मकसद ये वे अगर सिला रहमी करोगे अल्लाह तुहानू तुहाडे गुनाह माफ़ करके तुहाडी आखिरत बेहतर कर देगा। असी यार दिल काले लई फिरने आ तो फिर असी कह रहे नमाजा भी पढ़ी जाने, रोजे भी रखी जाने, हज भी करी जाने, उमरे भी करी जाने, भैन भी नाराज है, भरा भी नाराज है, चाचा भी नाराज है, मामा भी नाराज है, पुप्पी भी नाराज है। हजरत गिरामी कदर अज का पैगाम है वे सिलाए रहमी, रिश्तेदारी जोड़ा करो, रिश्तेदारी तोड़ा ना करो। अल्लाह दे हुजूर दुआ है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला सानू सारे सिला रहमी करने वाला बनाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।